السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الصلاح کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، نماز کے ارکان کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ انسان کو اپنے جسم کے 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی جا چکی تھی۔ 7 اعضاء کو اہل علم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پیشانی کو ایک حصہ بنایا، یعنی ناک اور پیشانی جمہور کے نزدیک، اور حنفیہ کے نزدیک دونوں میں سے ایک کو اختیار ہے، چاہے وہ پیشانی رکھے چاہے ناک رکھے۔ کل کے درس میں یہ وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کی تھی۔ اور اس کے علاوہ بقیہ جو اعضاء ہیں، یہ دونوں ہتھیلیاں، اس کے بعد گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں، ان کو ایک طرف رکھا۔ یہ تقسیم اس وجہ سے ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم پیشانی اور ناک زمین پہ رکھ سکتے ہیں، یا حنفیہ کے نزدیک پیشانی اور ناک میں سے کسی ایک کو زمین کے اوپر رکھ سکتے ہیں، اور بقیہ جو اعضاء ہیں ہمارے، یعنی ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور اس کے بعد دونوں قدموں کی انگلیاں، ان میں سے کسی ایک کو ہم نہیں رکھ سکتے۔ مثلا ایک ہاتھ نہیں رکھ سکتے، کل ہم نے مثال دی تھی، ہاتھ کسی کا اگر ٹوٹا ہوا ہے، بندھا ہے اس طرح سے، وہ نہیں رکھ سکتا۔ گھٹنے میں کسی کے چوٹ ہے، تکلیف ہے، وہ کہے کہ ہم ایک گھٹنے پہ کریں گے، دوسرا گھٹنا جو ہے زمین کے اوپر ٹکا نہیں سکتے، اس کو فولڈ کر کے اوپر رکھیں گے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کو نہیں رکھ سکتے، ایک پاؤں کی انگلی کو رکھیں گے کیونکہ ایک میں ہمیں تکلیف ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ اہل علم کہتے ہیں ایسی صورت میں جب وہ پیشانی رکھنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پیشانی رکھے، اور بقیہ اعضاء میں سے جن کو رکھنے کی طاقت ہے ان کو رکھے اور سجدہ کرے۔ کا دلیل اس کی کیا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، بقیہ چیزوں کو نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ چیزیں اس سے ساقط ہو جائیں گی۔ یہ ایک بات کل اس کے تعلق سے ہم نے اشارہ کر دیا تھا آپ کے سامنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ ہم جسم کے جو بقیہ اعضاء ہیں اس کو رکھ سکتے، یعنی دونوں ہتھیلی سجدے میں زمین پہ رکھ سکتے ہیں، گھٹنے دونوں رکھ سکتے ہیں، پاؤں کی دونوں انگلیاں رکھ سکتے ہیں، دونوں پاؤں کی انگلیوں کو رکھ سکتے ہیں، لیکن پیشانی اور ناک نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو حنابلہ کہتے ہیں، مالکیہ کہتے ہیں کہ اب وہ آدمی سجدہ نہیں کرے گا، سجدہ ساقط ہو گیا۔ تو کیا کرے گا؟ تو کہا اشارہ کرے گا، کہا تو پاؤں گھٹنا رکھنے کے، ہتھیلی رکھنے کے، ان کو رکھنے کی طاقت، استطاعت اس کے پاس ہے، کہاں تب بھی نہیں کرے گا۔ کہا کیوں نہیں کرے گا؟ یہ جو ہے نا حنابلہ اور مالکیہ کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا کسی مانع کی وجہ سے، جیسے ہم نے کل مثال دی تھی
ला कद्दर अल्लाह किसी का चेहरा जल गया हो, अब वो जमीन पे नहीं रखने की ताकत है। बकिया पूरा जिस्म सही सालिम है, वो रख सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको महफूज रखे। तो इस तरह का कोई मामला किसी के साथ पेश आ गया तो कहा कि अब वो आदमी जो है ना सजदा नहीं करेगा, बल्कि उसके बदल की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। और बदल क्या है? का इशारे से सजदा करेगा। रुकू के लिए जितना झुका है उससे ज्यादा झुक जाएगा जरा, लेकिन पूरे तौर पे अब सजदा करने की जरूरत नहीं है। ये कौन कह रहा है? हनाबिला और मालिकिया कह रहे हैं। क्या दलील क्या है आपके पास? कहते हैं दलील है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल यदैनी, गौर से इसको समझिए, इन्नल यदैनी यसजुदानी कमा यसजुदुल वज्ह फइज़ा वदअ अहदुकुम वजहहु फलियदअ यदहु व इज़ा रफअहु फलियरफअहुमा, रवाहु अहमद व अबू दाऊद व नसई व सह्हहु अल अलबानी। कहते हैं इन्नल यदैनी, ये दोनों हाथ सजदा करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इंसान का चेहरा सजदा करता है। बस तुम में का जो भी कोई शख्स अपनी पेशानी को जमीन के ऊपर रखे तो उसे चाहिए कि वो दोनों हथेलियों को भी रखे, और जब पेशानी को जमीन से उठाए तो दोनों हथेलियों को भी उठाए। इस हदीस को इमाम अहमद ने, इमाम अबू दाऊद ने, इमाम नसई ने रवायत किया है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह ने इसको सही करार दिया है। सवाल यह है कि हनाबिला और मालिकिया की दलील कहाँ बनती है? तो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल यदैनी यसजुदानी कमा यसजुदुल वज्ह, यसजुदानी, दोनों हाथ सजदा करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से चेहरा सजदा करता है। आगे कहा, इदा वदा अहदुकुम वजहहु, जब तुम में का कोई आदमी चेहरा जमीन पे रखे, फलियदा यदहु, तो उसके बाद अपने हाथ रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे को पहले रखने का हुक्म दिया और उसके बाद हाथ को रखने का हुक्म दिया। कह रहे तरतीब में, रखने के एतबार से नहीं, यानी जिक्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि पहले चेहरा, इदा वदा अहदकुम वजहहु, जब तुम में का कोई आदमी अपना चेहरा रखे और उसके बाद हथेली रखे, तो हथेली उसकी क्या करती है? ये दोनों सजदा करती है। तो ये कह रहे हैं, इस्तेदलाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हथेलियों को चेहरा के ताबे करार दिया। असल जो है वो वजह है, यानी पेशानी और नाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी इसके ऊपर दलालत करता है। आप कहते थे सजदा वजही, सजदा वजही लिल्लदी, है ना, दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो कहा चेहरे ने सजदा किया, सजद तो बेवजही अरब कहते हैं। तो सजदे में असल जो है वो वजह है। तो कह रहे हैं जब असल साकित है, नहीं रख सकता है जमीन के ऊपर असल को, और वो पेशानी और नाक है, तो बकिया चीजें भी जो उससे मुताल्लिक हैं वो साकित हो जाएगी। इदा सकतल असल सकतल फरा, जब असल साकित हो जाए, यानी असल का हुक्म खत्म हो जाए, तो फरा का हुक्म भी खत्म हो जाएगा। उसकी मिसाल समझिए, दरख्त है, जड़ है उसकी, उसके तने हैं और डालियां हैं। तो कहा जब जड़ काट दोगे तो फिर डालियों के बाकी रहने का क्या फायदा है? का उसी तरीके से सजदे में चेहरे का रखना, यानी पेशानी और नाक का रखना, यह असल है। अगर ये साकित हो गया तो बकिया आदा को, जिस्म के बकिया आदा को जमीन के ऊपर रख करके सजदा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो ये कहते हैं इदा सकतल असल सकतल फरा या सकतती तवाबि, ये दोनों अल्फाज हैं। और बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि नहीं, अगर वो पेशानी रखने की ताकत नहीं रखता, नाक रखने की ताकत नहीं रखता, लेकिन बकिया जो जिस्म के हिस्से हैं जिससे सजदा करने हैं उनको रखने की ताकत रखता है, तो उनको रख करके सजदा करेगा। और पेशानी को जमीन से जितना चाहेगा, जितनी उसकी ताकत हो उतनी करीब करने की कोशिश करेगा। ये बाकी अहले इल्म कहते हैं। कहा क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? कहा कि इसलिए कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अमरतुकुम बिअमरिन, लोगों मैं अगर तुम्हें किसी काम के करने का हुक्म दूं, फअतू मिन्हु मस्तताअतुम, जितनी तुम्हारी ताकत हो उतनी भर कर दो। तो हमारी ताकत है कि हम घुटना जमीन पर रख सकते हैं,
दोनों पांव की उंगलियों को जमीन पर रख सकते हैं, दोनों हथेलियों को जमीन पर रख सकते हैं, सिर्फ पेशानी और नाक को नहीं रख सकते हैं, तो उसका रखना साकित हो जाएगा और बकिया जो जिस्म के आधा हैं उसको हम रखेंगे। यही बात ज्यादा दुरुस्त और सही मालूम होती है, यही बात ज्यादा दुरुस्त और सही समझ में आती है। और उसके ऊपर फिक्ही कायदा भी दलालत करता है। वो कायदा क्या है? कहते हैं मन क़दर अला बअदिल इबादा, जो आदमी इबादत के बाज़ हिस्से के ऊपर कादिर हो, वअजज़ अन बाक़ीहा, और बाकी को करने से आजिज हो, वजब अलैहि अन याती बिमा क़दर अलैहि, तो उस शख्स के ऊपर वाजिब है कि वो उतना करे जितने करने की ताकत रखता है। समझ रहे हैं? एक मुकम्मल इबादत है। अब इसी से हम कहते हैं कि जो खड़े होने की ताकत रखता है वो क़याम करे, रुकू नहीं कर सकता है बैठ के रुकू कर ले, सजदा जमीन पे जाके नहीं कर सकता है सजदा। अब ये नहीं कि घुटने पे दर्द है तो हम पूरी की पूरी नमाज खड़े होकर के पढ़ रहे हैं, खड़े होने पर कादिर हैं कि नहीं है? आखिर चल करके आप मस्जिद आए हैं, खड़े हो जाते हैं स्टेट, कोई परेशानी आपको नहीं है। हाँ, परेशानी है रुकू करने में, कमर में दर्द है, परेशानी है सजदा करने में, नहीं जा सकते, या अगर सजदे में गए तो उठ नहीं सकते, तो ऐसी सूरत पे कुर्सी पे बैठ जाइए। लेकिन लोगों ने इन मसाइल को समझा नहीं, जिसकी वजह से आप देखिएगा जरा सा किसी के साथ कोई प्रॉब्लम कोई मामला हुआ, बस फट से कुर्सी के ऊपर आकर के बैठ गया। और मसाजिद जो है आज कुर्सियों से पटे हुए हैं, और अइम्मा उसकी तौजीह भी नहीं करते, बताते भी नहीं है कि भाई जवान जहान हो, जरा सा तुम्हारे घुटने में चोट है, पढ़ो नमाज, कोशिश करो, अगर इसी में कोई और मामला हो तो कर सकते हो। हाँ, वाकई अगर तकलीफ है, दिक्कत है, तो शरीयत इजाजत देती है, खड़े होकर के क़याम कीजिए, रुकू को अपने तरीके पर कीजिए, सजदा के लिए जमीन पे नहीं जा सकते हैं तो ठीक है बैठ जाइए, तकलीफ अगर इतनी है तो। लेकिन जरा सी तकलीफ पे पूरी नमाज कुर्सी के ऊपर बैठ करके पढ़ना, ये इबादत कोई आदमी अगर ऐसा करता है तो उसकी इबादत दुरुस्त नहीं होगी। मुसन्निफ चूंकि ये कह रहे हैं, हनाबला के मजहब के मुताबिक ये किताब है, तो मुसन्निफ ये कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी पेशानी जमीन के ऊपर रखने की ताकत नहीं रखता तो वो आदमी क्या करेगा? कहा कि वो शख्स सजदा नहीं करेगा, वो मुंतकिल हो जाएगा उसके बदल की तरफ। तो इसीलिए मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह आगे कह रहे हैं वयुमी मा युमकिनुहु, इशारा करेगा जितना चाहे। लेकिन हम आपको बता चुके कि ये मसला दुरुस्त नहीं है, हनाबला और मालिकिया का मसला दुरुस्त नहीं है। जो आदमी पेशानी नहीं रख सकता है ठीक है, न रखेगा, लेकिन जिन जिन आदा को जमीन के ऊपर रख सकता है उनको रख करके वो सजदा करे। उम्मीद है कि ये मसाइल अब समझ गए होंगे। उसके बाद मुसन्निफ कहते हैं अस्सामिन अर्रफ मिन सुजूद, सजदे से या सजदों से सर उठाना। यह नमाज के अरकान में से 8वां रुकन है, सजदे से सर उठाना। सजदे से सर उठाना इसको रुकन बनाया है। अहले इल्म कहते हैं कि हादा ला युतसव्वर, इसका तसव्वुर नहीं है। यानी अगर आदमी सजदे से सर नहीं उठाएगा तो किसी दूसरे रुकन की तरफ कैसे मुंतकिल होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है। रुकू के बाद रुकन है। अब अगर कोई आदमी ऐसा कहे कि हम सजदे से उठेंगे ही नहीं, तो क़याम कैसे करेगा? वो फिर बकिया नमाज कैसे करेगा? तो अहले इल्म कहते हैं कि ये मुतसव्विर नहीं है। बहरहाल हनफिया कहते हैं और मालिकिया कहते हैं कि अगर कोई आदमी सजदा के लिए झुक गया, गौर से सुनिए मसले को, सजदे के लिए झुक गया, सजदे पे गया, और उसके बाद तलवार जिस तरह चलाई जाती है, यही मिसाल है उनकी किताबों में, का तलवार ऐसा लिया चलाया, ऐसे ऐसे लिया ऐसे चलाया, देखते हैं ना तलवार, उठाया चलाया, कितना टाइम लगा, का अगर इतना कर ले तो उसकी नमाज हो जाएगी, उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ये कह रहे हैं रुकू में भी और सजदे में भी अगर इतना कर ले। और यही वजह है आप देखते हैं कि किस कदर तेजी के साथ अल्लाहु अकबर ये कहते हैं। हालांकि ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि सजदे से आदमी सर उठाए और सर उठाने के बाद पूरी तरह से बैठ जाए, सही तरीके से बैठ जाए, और फिर उसके बाद दूसरे सजदे के लिए जाए। उसी को मुसन्निफ आगे बयान कर रहे हैं। अत्तासे
9 नंबर का रुकन है वो अलजुलूस बैन सजदतैन, 2 सजदों के दरमियान बैठे। यानी नमाज के अरकान में से ये रुकन है कि आदमी 2 सजदों के दरमियान बैठे। ये जो है ना जुमहूर के नजदीक रुकन है। जुमहूर फुक़हा हनाबला, मालिकिया और शाफिइया के यहाँ मुअतमद अलैह कौल, यानी जिसके ऊपर एतमाद किया जाता है वो ये है कि आदमी 2 सजदों के दरमियान वाजिब है, रुकन है कि वो आदमी बैठे। अगर कोई ना बैठे, अल्लाहु अकबर तलवार की तरह जैसे हमने कहा, उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि उसने रुकन को छोड़ दिया, रुकन को तर्क कर दिया, रुकन को तर्क कर दिया। तो जुमहूर के नजदीक, हनाबला, मालिकिया और शाफिया कौल के नजदीक, हनफिया के नजदीक और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के एक कौल के मुताबिक क्या है, 2 सजदों के दरमियान बैठना ये वाजिब नहीं है, बल्कि जमीन से सर उठाए, इतना उठा ले कि कहेंगे कि सर उठा लिया है, मुकम्मल उठाने की भी जरूरत नहीं है, का जमीन से सजदे में गया है, इतना उठ जाए कि कहा जाएगा कि ये सर उठा लिया है, का बस हो जाएगा। अकल मा यंतलिकु अलैहि लिस्म, यानी इतना कि कहा जाएगा कि उठा लिया सर, हो जाएगा। उसी की मिसाल हमने दी कि अगर तलवार की तरह भी हो, अहले इल्म कहते हैं कसैफ, यानी मुजर्रद अन यरफा शैअन मिन रअसिही, सर का थोड़ा हिस्सा उठा लिया और फिर दूसरे सजदे में चला गया तो उसका सजदा हो जाएगा। ये कौन कहता है? हनफिया कहते हैं। लेकिन इस सिलसिले में राजे क्या है कि दोनों सजदों के दरमियान सही से बैठना ये रुकन है, सही से बैठना रुकन है, और अगर आदमी ना बैठे तो उसकी नमाज नहीं होगी। दलील क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसीए सलात को कहा था, वही हदीस कल भी हमने कहा था कि इसको मुकम्मल याद कीजिएगा, यह हदीस बार बार आएगी आपके सामने। मुसीए सलात को कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फिर तुम सुम्मरफा, सजदे से अपने सर को उठाओ, हत्ता तत्मइन्न जालिसन, यहां तक कि इत्मीनान से बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठ जाओ। सहीहैन की रिवायत है ये मुसीए सलात वाली। तो वो आदमी जो नमाज अदा कर रहा है उसके लिए जरूरी है कि दोनों सजदों के दरमियान सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे। अलजुलूसु बैन सजदतैन, 2 सजदों के दरमियान इत्मीनान और सुकून से बैठे। अब सवाल यह है कि कैसे बैठे, कैसे बैठेगा? तो मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वह कैफ जलस कफा, जैसे भी बैठे काफी हो जाएगा। यानी हम ये जान चुके अहले इल्म के सही कौल और दलाइल की रोशनी में कि 2 सजदों के दरमियान बैठना ये रुकन है, रुकन है, बगैर उसके नमाज इंसान की दुरुस्त नहीं होगी। तो अब बता रहे हैं कि कैसे बैठेगा, तो कहा जिस तरह से भी बैठ जाए वो उसकी नमाज हो जाएगी, काफी हो जाएगा। यानी बैठने, यानी किसी आदमी को देख करके आप बैठने का हुक्म उसके ऊपर लगा सकते हैं, का उस कैफियत को अगर किसी ने इख्तियार कर लिया उसका रुकन जो है वो अदा हो जाएगा। यानी अगर कोई आदमी दोनों कदमों को खड़ा करके, इस तरह दोनों कदम है इसको खड़ा कर दिया और अपने एड़ी के ऊपर बैठा, सूरत मसला को समझिएगा, 2 सजदों के दरमियान अगर कोई आदमी दोनों कदमों को खड़ा करके, यानी इस तरह से उंगलियों को मोड़ दिया और पांव को, कदम को खड़ा किए हुआ और एड़ी है उसकी एड़ी के ऊपर बैठ गया, तो कहा अगर इस तरह से बैठे तब भी हो जाएगा। इफ्तिराश करे, इफ्तिराश करने का मतलब यह है कि दाएं पांव के उंगलियों को मोड़ करके रखे और बाएं पैर को या कदम को बिछाए और इसके ऊपर बैठे, इसको इफ्तिराश कहते हैं। या तवर्रुक करे, यानी एक पांव को ऐसे मोड़ करके रखा और एक को इसके नीचे से गुजार करके जमीन पे बैठे, इस तरह से बैठे। 2 सजदों के दरमियान बैठने की कैफियत हम आपके सामने बता रहे हैं। कहा क्यों ऐसा कह रहे हैं? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुम्मा रफ़अ हत्ता तत्मइन्न जालिसन, सजदे से सर उठाओ यहां तक के आराम से बैठ जाओ। बल्कि बाज़ अहले इल्म ने कहा कि अगर वहां पे पलथी मार के भी बैठ जाए तब भी दुरुस्त है। यानी एक सजदे से उठा, एक अकवाल जिक्र कर रहा हूं मैं,
राजे नहीं बता रहा हूं, अकवाल जिक्र कर रहा हूं, ये समझिएगा। कहा कि एक सजदा किया, उसके बाद उठा, पलथी मार के बैठ गया, दोनों पांव को मोड़ करके जो बैठते हैं, क्या इस तरह बैठ गया, या नहीं तो दोनों कदमों को खड़ा करके एड़ी के ऊपर बैठ गया, या नहीं तो इफ्तिराश किया, या नहीं तो तवर्रुक किया, कोई भी कैफियत इख्तियार कर ले, कहा कि रुकन जो है अदा हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुम्मा रफ़अ हत्ता तत्मइन्ना जालिसन, और अगर बैठना किसी को कहा जा सकता है तो जालिसन के हुक्म में वो चीज दाखिल होगी। जालिसा के हुक्म में, यानी बैठने वाले के हुक्म में वो कैफियत उसकी दाखिल होगी। आगे मुसन्निफ कहते हैं, गौर से देखिए, वस्सुन्ना, सुन्नत लेकिन ये है अन यजलिस मुफ्तरिशन, कि वो आदमी इफ्तिराश करे, यानी अला रिजलिहिल युसरा, यजलिस अला रिजलिहिल युसरा व यंसुब अल युमना व युवज्जिहहा इलल क़िबला। क्या करे? इफ्तिराश करे। दो सजदों के दरमियान बैठने की कैफियत बता रहे हैं। सुन्नत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बैठते थे? तो कहा इफ्तिराश करते थे, बाएं पैर को जमीन पे बिछाते, उसके ऊपर बैठते, और दाहिने पैर के उंगलियों को इस तरह मुंह फोल्ड करके किबले की तरफ कर देते और एड़ी मोड़ करके रखते। ये बैठने की कैफियत होती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये सुन्नत है। अकमल, अफजल, बेहतर और दुरुस्त बात यह है कि आदमी इफ्तिराश करे, जब दो सजदों के दरमियान में बैठे तब जाकर के वो इफ्तिराश करे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी अहादीस में ये साबित है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ्रिशु रिजलहु अल युसरा, अपने बाएं पैर को जमीन पर बिछाते, वयंसुब अल युमना, और दाहिने पैर को गाड़ देते, यानी खड़ा रखते, इस तरह से जो कैफियत बताया। सही मुस्लिम की रिवायत है ये, और ये सिफत कई एक सहाबा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सजदों के दरमियान बैठने की ये सिफत साबित है। इसी तरह से हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, मिनस सुन्ना अस्सलात मिन सुन्नति सलाती अन यंसुब अल कदम अल युमना व इस्तिक़बालिही बिअसाबिहा अल क़िबला। सुन्नत यह है कि आदमी अपने दाएं पैर के उंगलियों के को किबले की तरफ मोड़ करके बैठे और बाएं पैर को बिछा करके उस पर बैठ जाए। इस हदीस को इमाम नसई ने रिवायत किया है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह ने इसको सही करार दिया है। अब उसके बाद जो हम बात बताने जा रहे हैं, इसको भी जरा खूब गौर से सुनिए। सबसे अकमल, सही और दुरुस्त कैफियत दो सजदों के दरमियान बैठने की यह है कि आदमी इफ्तिराश करे, और इफ्तिराश की कैफियत हमने आपको बतला दी कि बाएं पैर को बिछाए, उस पर बैठे और दाहिने पैर को मोड़ करके उंगलियों को किबले की तरफ करे। जिसकी जितनी उंगली मुड़े, पांचों उंगलियां कोई मोड़ सकता है, मोड़े। अब उंगलियां छोटी बड़ी होती हैं, किसी की अंगूठे की जो उंगली होती है वो लंबी होती है, बकिया उंगली छोटी होती है, तो सिर्फ दो ही उंगली मुड़ती है, बाकी नहीं मुड़ सकती, कोशिश भी करे तो नहीं मुड़ेगी। तो ठीक है, जितनी मुड़ रही है उतनी मोड़े, कोशिश करे कि पांचों उंगलियां मोड़ करके बैठे पांव की इस तरह से किबले की तरफ करके, लेकिन जितना हो रहा है उतना उसको करना चाहिए। ये अकमल, अफजल और बेहतर तरीका है। लेकिन सुन्नत दो सजदों के दरमियान इस तरह से बैठना भी है। किस तरह से बैठना है? कि अपने पांव के दोनों उंगलियों को मोड़ दे और पांव को खड़ा रखे और एड़ी के ऊपर बैठे, एड़ी के ऊपर बैठे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार इस तरह भी बैठा करते थे। दो सजदों के दरमियान की बात हो रही है जी, इसको याद रखिएगा। मैं 2 रकत नमाज के बाद बैठने की बात नहीं कर रहा हूं, 2 सजदों के बाद या 2 सजदों के दरमियान किस तरह से बैठना है उसकी कैफियत आपके सामने बयान कर रहा हूं। लेकिन देखिएगा कि बाज लोग जो तस्वीरों में नमाज को समझाते हैं, हमने चेक भी किया एक आध को, तो कहा कि 2 सजदों के दरमियान बैठने में जो कैफियत है, ये जो कैफियत है कि पांव को इस तरह मोड़े और एड़ी के ऊपर बैठे,
اس میں کٹ لگائے ہوئے ہیں، صحیح نہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیفیت درست اور صحیح نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ افتراش افضل ہے، وہ بہتر ہے، لیکن یہ کیفیت بھی سنت ہے۔ کبھی کبھی آدمی کو اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے کہ اپنے دونوں قدموں کو کھڑا رکھے، انگلیوں کو قبلے کے جانب موڑ کر کے، اور ایڑی کے اوپر بیٹھے۔ آج بہت سارے لوگ اس کو نہیں کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ اس کو منع کرتے ہیں، اس لیے کہ جمہور نے اس سے منع کیا ہے، اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقعاء سے منع کیا ہے، اور اقعاء کی تفسیر اسی سے کرتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیے گا، غور کیجئے گا تو اکثر احادیث جس میں اقعاء سے منع کیا گیا ہے وہ حدیثیں درست نہیں ہیں، صحیح نہیں ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی کو صحیح آپ مان بھی لیتے ہیں تو اقعاء کی جو تفسیر اہل علم نے یعنی جمہور نے بیان کی ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے جب نماز کی مکروہات کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے، کبھی کبھار دو سجدوں کے درمیان آدمی کو اس طرح سے بیٹھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی دو سجدوں کے درمیان اپنے ایڑیوں کے اوپر بیٹھتا ہے تو کیا ہے یہ؟ کہا ہی من السنہ، ہی من السنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے انہو کان یقعد علی اطراف اصبعہ ویقول انہا من السنہ، وہ اپنے انگلیوں کے کناروں کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ اب انگلی کے کنارے کے اوپر کیسے آدمی بیٹھے گا؟ انگلی کو ایسے موڑے گا اور ایڑی کے اوپر بیٹھے گا، تب نہ کہیں گے کہ انگلی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ کہ بھائی ہم کسی کو کہیں گے کہ انگلیوں کے بل کھڑا تھا، کب کھڑا تھا؟ جب آپ ایڑی کو اٹھائے ہوں گے اور پنجے کے بل کھڑے ہوں گے، تبھی تو کہا جائے گا۔ تو کہا انگلیوں پر بیٹھتے تھے، انگلیوں کے کنارے پر، یعنی انگلیوں کے کنارے کو ایسا موڑ دیتے دونوں پیر کے اور ایڑی کے اوپر بیٹھتے تھے، ایڑی کے اوپر بیٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات صحیح مسلم میں، اور امام بیہقی نے اس کو روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ انہا من السنہ، صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے بیہقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تمام صحابہ سے ان کا یہ عمل نقل کیا ہے انہم کانوا یجلسون هذه الجلسہ فی الصلاۃ، کہ وہ نماز میں دو سجدوں کے درمیان اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر الاسقلانی کی موافقت کی ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ دو سجدوں کے درمیان اگر کبھی کبھار آدمی اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے بیٹھتا ہے تو بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن جمہور فقہا، اور ان میں حنابلہ بھی ہیں، یعنی حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مکروہ ہے، دو سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ سنت ہے، سنت ہے۔ یہ دلیل آپ کو دیا صحیح مسلم کی روایت سے، بیہقی کی روایت سے، صحابہ کے عمل سے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، فقہائے صحابہ ہیں، سب اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے نماز میں۔ بیہقی نے روایت کیا، حافظ ابن حجر نے صحیح کہا اس روایت کو، اور امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ دیکھیے، ہم سنت کے متبع ہیں، دلیلوں کی پیروی کرنے والے ہیں، دلیل ہمیں جس جانب لے کر جائے گی ہم اس جانب جائیں گے۔ کہ اہل السنہ، امام زہری کہا کرتے تھے اہل السنہ یدور کما دارت دلیل، جیسے دلیل گھومتی ہے اہل سنت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دلیلوں کے ساتھ گھومتے ہیں۔ اب کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ہم لوگوں کو تو آج تک یہ بات معلوم نہیں تھی،
اب ہم حدیث دے رہے ہیں اور حدیثوں کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو یہی فائدہ ہے اس طرح کے دروس کے اندر شرکت کرنے کا، اس طرح کے دروس کے اندر شرکت کرنے کا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اے مسلمان شخص یا اے مسلمان آدمی، تمہیں چاہیے کہ تم سنت کے اوپر عمل کرو اور کبھی کبھی اس طرح سے بھی بیٹھ لیا کرو۔ اہل علم کے راجح قول کے مطابق جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اس طرح سے بیٹھنا 2 سجدوں کے درمیان بھی سنت ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں العاشر الطمانینہ وہی السکون وان قل فی کل رکن فعلی۔ طمانینہ، طمانیت، سکون جس کو کہتے ہیں، یہ بھی رکن ہے، اور ہر فعلی رکن میں، یعنی وہ رکن جس کا تعلق فعل سے ہے، قول سے نہیں، اس میں طمانینت، سکون، اطمینان، یہ رکن ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا۔